So today we are going to start the new topic, which is curvilinear motion, and we are going to develop the kinematics of this curvilinear motion in terms of its normal and tangential coordinate system. So this is a new coordinate system to you. You are more familiar with the conventional XYZ coordinate system using unit vectors I, J, and K. However, today we are going to develop the kinematics in this normal and tangential coordinate system. Now, before developing the kinematics in NNT coordinate system, first of all, we need to understand कि ये coordinate system है क्या. Only then we would be able to develop the kinematics in this coordinate system. So आज हम थोड़ा सा पहले normal tangential coordinate system की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें kinematics की बात करेंगे, and then we are going to solve some examples and problems relevant to the kinematics in terms of NNT coordinate system. Okay, how we are going to define this normal and tangential coordinate system? First of all, when we talk about curvilinear motion and the particle is traveling along a curved path, so it is often convenient to describe the motion of this particle using the NNT coordinates, which basically acts normal and tangent to the path at that particular instant. So how we are going to define this normal and tangential coordinate system? थोड़ा सा इसको गौर से देखें. Let us consider a particle which is shown to you, and it is traveling along the curved path, which is this curved path as shown to you. This particle is moving along a fixed curve such that at any given instant, it is located at a position coordinate S as shown to you. So this is the position coordinate S, and the particle is located at this instant or this position P as shown to you in the figure. This position coordinate S is being measured from some fixed point O on the curve as shown to you. Now, the tangential axis, first of all, how we are going to define these two axes. The tangential axis, जिसको हम T axis भी कहते हैं, the tangential axis is defined tangent to the curve at point P या at that particular instant जो भी आप consider कर रहे हैं, and its positive direction is designated in the direction of increasing S. So अगर आपके पास एक पार्टिकल है जो कि इस कर्व के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहा है और किसी भी इंस्टेंट पे वो पार्टिकल यहाँ लोकेटेड है और आपका ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है जो कि हम S के तौर पे जो है वो डिफाइन कर रहे हैं. So since this particle is traveling in this particular direction, so the direction of increasing S is basically this direction. तो इसी डायरेक्शन के हवाले से हम जो टेंजेंशियल एक्सिस डिफाइन करते हैं, इट इज द एक्सिस व्हिच इज बीइंग डिफाइंड टेंजेंट टू द कर्व. तो ये वो एक्सिस टी एक्सिस हो गई है जो कि टेंजेंट टू द कर्व हमने किसी भी इंस्टेंट पे जो है वो डिफाइन कर ली है. एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ दिस टेंजेंशियल एक्सिस बीइंग डिफाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एस. जिस डायरेक्शन में एस इंक्रीज कर रहे हैं उस डायरेक्शन में हमने ये टी जो है वो डिफाइन कर लिया. क्योंकि इस केस में द पार्टिकल वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ से हमने टी का पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो डेजिग्नेट कर लिया. इसी तरह अगर हमारे पास एक पार्टिकल होता जो कि से इस पर्टिकुलर कर्व के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहा था और किसी भी इंस्टेंट पे से इट इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट और यहाँ से वो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट एस जो है वो रेफरेंस किया जाता है. सो नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एस. अगेन जो टेंजेंशियल एक्सिस है हमारी वो डिफाइन तो होंगी टेंजेंट टू द कर्व, लेकिन अब चूंकि इस डायरेक्शन में एस इंक्रीज कर रहे हैं, सो ये इस टेंजेंशियल एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा. तो हमेशा जब भी हम टेंजेंशियल एक्सिस की बात करते हैं, इट इज द एक्सिस व्हिच इज बीइंग डिफाइंड tangent to the curve at that particular instant, and its positive direction is being designated or is being defined in the direction of positive s. यानी जिस डायरेक्शन में s इंक्रीज हो रहा होगा उस डायरेक्शन में हम इसका पॉजिटिव डायरेक्शन डिफाइन कर लेंगे. और जिस तरह हम नॉर्मल XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते थे कि जो सपोज x एक्सिस के अलोंग जो पॉजिटिव डायरेक्शन होता था उसको हम यूनिट वेक्टर i के साथ डेजिग्नेट करते थे, बिल्कुल उसी तरह हम ये जो पॉजिटिव t एक्सिस हैं इसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे यूजिंग यूनिट वेक्टर ut which defines a vector unit vector in the direction of positive t axis. इसी तरह इस केस में ये हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में जो है वो डिफाइन हो जाएगा. सो जब भी हम बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सिस की, तो इट इज द एक्सिस व्हिच इज बीइंग डिफाइंड टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एंड इट्स पॉजिटिव डायरेक्शन इज गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग s, एंड दैट डायरेक्शन इज बीइंग डेजिग्नेटेड बाय यूनिट वेक्टर ut. दूसरी जो एक्सिस हैं जिसको हम नॉर्मल एक्सिस या एन एक्सिस कहते हैं, पहली एक्सिस टेंजेंशियल एक्सिस थी जिसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया था. द सेकंड एक्सिस इज नॉर्मल एक्सिस जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. सो द नॉर्मल एक्सिस एन इज परपेंडिकुलर टू द टी एक्सिस एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट and is directed from P towards the center of curvature O dash. The positive direction, which is always going to be towards the concave side of the curve, is designated by the unit vector un. तो अब जब हमने t axis define कर ली है, the second axis is the normal axis which is being defined perpendicular to the t axis, and its direction is going to be towards the center of curvature. From that particle's position towards the center of curvature हम जो है वो n axis define करते हैं. So this is our n axis. इस केस में हमारे पास ये जो है वो n axis आ जाएंगी. इसी तरह इस केस में हमारे पास ये जो है वो
n axis आ जाएंगे. So n axis is always defined perpendicular to the t axis at that particular instant, and the positive direction of this n axis is always going to be towards the center. That positive direction is represented by unit vector un. So this is the unit vector un. Similarly, in this case, this is going to be the unit vector un. तो हमारे पास ये दो axes आ गई हैं which are mutually perpendicular to each other. The first one is the tangential axis being defined tangent to the curve at that particular instant. The second one is the normal axis which is defined to be perpendicular to the tangential axis. The positive direction of tangential axis is defined in the direction of increasing s, and that direction is designated by the unit vector ut. The positive direction of n axis is defined towards the concave side of the curve, that is from that particle towards the center of curvature, and that positive direction is being designated by the unit vector un. तो ये तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई. जो एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था हमारा, उसमें हमारे पास तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती थी. बिल्कुल इसी तरह इस एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमारे पास तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आती हैं. दो तो ये एक्सिस हो गई विच आर द एन एक्सिस एंड द टी एक्सिस. इन दोनों को मिला के हमें जो प्लेन मिलता है दैट इज द एंटी प्लेन. The third axis, which is known as the binormal axis, जिसको हम B के साथ डिनोट करते हैं, that binormal axis is being defined perpendicular to this anti plane. So अगर मैं इस बोर्ड को या इस लैपटॉप की स्क्रीन को या आपके सामने जो स्क्रीन नजर आ रही है उसको एंटी प्लेन कहूं, तो आपके पास जो थर्ड एक्सिस जिसको हम बायनॉर्मल एक्सिस कहते हैं, दैट एक्सिस इज बीइंग डिफाइंड परपेंडिकुलर टू दिस एंटी प्लेन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट. तो ये आपके पास तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आ जाती हैं. द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ दैट बायनॉर्मल एक्सिस इज बीइंग डेजिग्नेटेड बाय द यूनिट वेक्टर यूबी. जिस तरह आप यूटी और यूएन डिफाइन करते हैं, इसी तरह आप बायनॉर्मल एक्सिस का भी पॉजिटिव डायरेक्शन डिफाइन करते हैं आउटसाइड दिस बोर्ड या आउटसाइड दिस स्क्रीन, एंड दैट पॉजिटिव डायरेक्शन इज बीइंग डेजिग्नेटेड बाय द यूनिट वेक्टर UB. तो ये आपके पास तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आ जाती हैं, और फिर इन्हीं एक्सिस की मदद से आप जो है वो एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम में काइनेमेटिक्स जो है वो डेवलप करेंगे. सो किसी स्टूडेंट को इन तीनों एक्सिस में से किसी एक्सिस के हवाले से कोई डाउट, कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें? जी, if you have जी अदील अजमल, you want to ask something? I have allowed you to unmute. अदील अजमल, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मोहम्मद तारिक, you also want to ask something? आपको भी मैंने अलाउ कर दिया, you can unmute yourself, और आप क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं. जी तारिक, आपने हैंड रेस किया हुआ है, मैंने आपको अलाउ भी कर दिया है. आप काइंडली क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं. अपने आप को अनम्यूट करें. ओके सर. सर अनम्यूट नहीं हो रहा था, अभी अनम्यूट हुआ है. स्क्रीन से दोबारा रिपीट करेंगे आप? वो सर समझ नहीं आ रहा. अच्छा, चले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं. हमने किया क्या है कि सबसे पहले इस एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम में बजाय काइनेमेटिक्स पे स्ट्रेट अवे मूव करने के, हम पहले इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए इसमें जो एक्सिस डिफाइन हो रही हैं सबसे पहले उसकी बात करते हैं. हम कहते हैं कि आपके पास एक कर्व है जिसके अलॉन्ग ये पार्टिकल जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, और किसी भी इंस्टेंट पे जो टेंजेंशियल एक्सिस है वो आप डिफाइन करते हैं. इट इज द एक्सिस विच इज बीइंग डिफाइंड टेंजेंट टू द कर्व. सो अगर इस पार्टिकल जो है वो इस लोकेशन पे मौजूद है, विच इज द लोकेशन शोन टू यू इन दिस ग्राफ और इन दिस फिगर, तो ये पोजीशन है. इस पोजीशन पे आपने एक एक्सिस डिफाइन कर दी विच इज दिस एक्सिस विच इज बीइंग डिफाइंड टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट. दिस एक्सिस इज टर्म्ड एज द टेंजेंशियल एक्सिस. अब इसी तरह अगर ये पार्टिकल यहाँ लोकेटेड होता तो इन दैट केस द टेंजेंशियल एक्सिस इज गोइंग टू बी डिफाइंड इन दिस पर्टिकुलर फैशन. तो हमेशा वो एक्सिस जो कि टेंजेंट टू द कर्व डिफाइन होती है, दैट एक्सिस टर्म्ड एज द टेंजेंशियल एक्सिस. Tangential axis का positive direction क्या होता है? It is in the direction of this increasing s. So if the particle is traveling in this direction, so this is going to be the direction of tangential axis. इसी तरह this is going to be the direction of tangential axis. इसी तरह अगर particle आपके पास एक curve इस तरह का होता है और particle जो है वो इस तरफ move कर रहे हैं, तो this is going to be the direction of tangential axis. तो हमेशा tangential axis define होती है tangent to the curve, और उसके positive direction को हम पार्टिकल की ट्रेवलिंग के हिसाब से जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं कि जिस डायरेक्शन में भी s इंक्रीज कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन इज टर्म्ड एज द पॉजिटिव टेंजेंशियल एक्सिस डायरेक्शन. ये टेंजेंशियल एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसको हम यूनिट वेक्टर ut के साथ जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं या डेजिग्नेट करते हैं. सो दिस इज यूनिट वेक्टर ut, जिसके साथ हम इस पॉजिटिव डायरेक्शन को जो है वो डेजिग्नेट कर रहे होते हैं. जो सेकंड एक्सिस है, इट इज बीइंग डिफाइंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल एक्सिस. सो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल एक्सिस आपकी ये वाली एक्सिस आ जाती हैं. तो ये हमारे पास n एक्सिस आ रही हैं, एंड इट्स पॉजिटिव डायरेक्शन इज गोइंग टू बी डेजिग्नेटेड in a direction which is from that particle towards the center of curvature. तो आपके पास पार्टिकल से लेके towards the center of curvature जो है
वो n एक्सिस जो है वो डिफाइन हो जाती हैं। द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ दिस n एक्सिस इज डेजिग्नेटेड बाय यूनिट वेक्टर un। तो आपके पास ये जो वेक्टर आएगा, दिस डिफाइंस द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ n एक्सिस व्हिच इज दिस यूनिट वेक्टर un। तो ये आपके पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आ गई, टेंजेंशियल एक्सिस एंड नॉर्मल एक्सिस। जो थर्ड एक्सिस है वो इस एंटी प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस डिफाइन होती है जिसको हम बायनॉर्मल एक्सिस कहते हैं, उसको हम यूनिट वेक्टर ub के साथ डेजिग्नेट करते हैं। सो दैट थर्ड एक्सिस इज नोन एज द बायनॉर्मल एक्सिस। तो ये आपके पास तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आ गई है, टी एक्सिस, एन एक्सिस एंड बी एक्सिस, जिसकी मदद से आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में काइनेमेटिक्स जो है वो डेवलप करेंगे। इज इट क्लियर तारिक? एक्सक्यूज सर, बाइनोमियल एक्सिस कौन सी साइड होती है? बायनॉर्मल एक्सिस, जिस तरह सपोज मैं आपसे परपेंडिकुलर कहूँ होती है दोनों को? जी, मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है। इन दोनों एक्सिस को मिला के आपके पास जो प्लेन बनेगा हम उसको xy प्लेन कह रहे होते हैं। z एक्सिस आप किस तरह डिफाइन करते हैं? इट इज द एक्सिस व्हिच इज बीइंग डिफाइंड परपेंडिकुलर टू द xy प्लेन। ऐसा ही है xyz कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यस सर। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो n एक्सिस है और t एक्सिस है, इनको मिला के जो प्लेन बनेगा, दैट प्लेन इज टर्म्ड एज द एंटी प्लेन। और इस एंटी प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस डिफाइन होती है, दैट इज टर्म्ड एज द बायनॉर्मल एक्सिस। z एक्सिस के बजाय यहाँ वो बायनॉर्मल एक्सिस है जिसको हम b के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है? ओके सर। सर कन्वेंशनल जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है उनको यूज करने के बजाय हम ये यूज करें सर, क्या हो जाए? देखिए, अभी हम इसमें थोड़ा सा काइनेमेटिक्स देखते हैं ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसका फायदा क्या है। जनरली जब भी कर्व में कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है ना, तो हम कन्वेंशनल एक्सिस XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बजाय या तो उसको एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसकी काइनेमेटिक्स को डिफाइन करते हैं या पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ उसको डिफाइन करते हैं, बिकॉज इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में काइनेमेटिक्स जो है वो डिफाइन करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी आप देखेंगे जब हम काइनेमेटिक्स डेवलप करेंगे कि क्यों हम ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। Okay, any other question? So I hope के axis हर एक को समझ आ गई हैं. Now once you are clear with the axis system, now we are going to develop the kinematics of this particle in terms of its anti-coordinates. Okay, now let us consider the same particle जो कि इससे पहले पिछली स्लाइड में हमने कंसिडर किया था, which is traveling along the curved path, and at any particular instant this particle is located at this position P as shown to you. We are going to start with the velocity of this particle. Now इससे पिछली स्लाइड में हमने क्या कहा था कि आप इस पार्टिकल की पोजीशन जो है इसको s कोऑर्डिनेट के साथ डिफाइन करते हैं, which is being measured from some fixed origin जिसको हमने o dash का नाम दिया था. So this position coordinate s is generally defined to you as a function of टाइम। तो आपके पास ये जो s है या ये जो पार्टिकल की आर्क लेंथ है, ये जनरली आपके पास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे जो है वो डिफाइन होती है। सो इफ this particle is moving along this curved path, this s is going to change with respect to time at each and every instant. So basically s is defined to you as a function of time. Now जहां तक ताल्लुक पार्टिकल की वेलोसिटी का है, तो इससे पहले आप बेशक कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम कर रहे हो, आप वेलोसिटी की डायरेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं? वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन होना चाहिए जब पार्टिकल कर्व में मूव कर रहे हैं? तो ये वॉलंटियर स्टूडेंट, whenever a particle is traveling along a curved path, G, tangent to the curve. So whenever a particle is traveling along a curved path, the direction of velocity is always going to be tangent to that curve at that particular instant. यहाँ आपकी टेंजेंशियल एक्सिस जो डिफाइन हुई है वो भी चूंकि टेंजेंट टू द कर्व डिफाइन हुई है, तो अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहूं तो वेलोसिटी वेक्टर जो है उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा और उसका कोई ना, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, तभी ये वेलोसिटी वेक्टर जो है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ अगर मैं सबसे पहले डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन के हवाले से चूंकि हमने कहा है कि जब भी एक पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग अ कर्व पाथ, द वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज गोइंग टू बी टेंजेंट टू द कर्व। यहाँ आपकी टेंजेंशियल एक्सिस भी टेंजेंट टू द कर्व है जिसका डायरेक्शन आपने यूनिट वेक्टर ut के साथ डिफाइन किया है। तो एक बात तो तय है कि वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन के लिए आप चाहें तो ये यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक ताल्लुक मैग्नीट्यूड का इस वेलोसिटी का, तो चूंकि आपके पास s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे डिफाइन है, आप इसको जब एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज v इक्वल टू ds by dt, यहां से आपको एक तरह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सो द कंप्लीट वेलोसिटी वेक्टर इज गोइंग टू बी s dot ut, where s dot defines the magnitude of this velocity vector and ut defines its direction. So overall जो आपके पास कंप्लीट वेलोसिटी वेक्टर आएगा, इट इज गोइंग टू बी v इक्वल टू v ut, where small v is equal to s dot, which represents the magnitude of this velocity vector, and ut represents the direction of this velocity vector. तो जब normal tangential coordinate system में आपसे कहा जाए कि velocity vector लिखें, it is going to be s dot ut, where s dot या v जो है it represents the magnitude of velocity and ut represents direction. यहाँ तक हर एक को वेलोसिटी क्लियर है या कोई चीज जो आप वेलोसिटी के हवाले से पूछना चाहें?
अगर आपको वेलोसिटी के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज आस्क दैट क्वेश्चन राइट नाउ। अपना हैंड रेज कर दें, मैं आपको अलाउ कर दूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द, म्यूट कर दें, बेहतर है। सारों को अनम्यूट कर दें। हाँ, सबको म्यूट करते हैं, बेहतर ओके है। ओके, ट्रायल के तौर पे मैं सारों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूं, लेकिन फिर इसको मिस यूज ना करें, अदरवाइज मैं फिर सारों को म्यूट कर दूंगा। ठीक है, मैंने फिलहाल वो ऑप्शन सबके लिए दे दिए कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। So if anyone who wants to ask any question regarding the velocity in terms of anti-coordinate system, he may ask now. Okay, so चूंकि कोई क्वेश्चन नहीं है, इट मींस कि वेलोसिटी आपको क्लियर है। यहाँ देखें हमने किया क्या कि आप जब XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, स्पेशली जिस स्टूडेंट ने सवाल किया था, XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम में चूंकि हमारे पास ना x एक्सिस ना y एक्सिस ना z एक्सिस वेलोसिटी के टेंजेंट होती हैं, तो हम करते क्या है कि उस वेलोसिटी को उसकी कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। दैट इज वेलोसिटी वेक्टर जो है उसमें i भी आ रहा होता है, j भी आ रहा होता है और k भी आ रहा होता है। यहाँ आसानी क्या हुई है कि चूंकि हमारी टेंजेंशियल एक्सिस डिफाइन ही टेंजेंट टू द कर्व, तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो दैट वेलोसिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द टेंजेंशियल एक्सिस। तो आपको उसके un या ub लिखने की जरूरत नहीं है, तमाम के तमाम वेलोसिटी वेक्टर जो है वो सारे के सारा टेंजेंशियल एक्सिस की तरफ ही आएगा और आप उसको सिंपली यूनिट वेक्टर ut के साथ जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट्स नहीं आएंगे, एक ही वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट आएगा जो कि पूरे के पूरा वो टेंजेंशियल एक्सिस की तरफ जो है वो होगा। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर जो टेंजेंशियल टू कर्व है उसका सर जो एंगल कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स के साथ बनेगा तो वो फिक्स ही रहेगा ना? नहीं, अच्छा चलें उसकी भी बात कर लेते हैं। होता क्या है कि अभी हम थोड़ा सा दोबारा वेलोसिटी वाली स्लाइड आपको नजर आ रही होगी। होता क्या है कि आप ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मसलन जब आपका पार्टिकल यहाँ मौजूद है तो आपके पास जो टेंजेंशियल एक्सिस हैं वो प्रोबेबली ये वाली एक्सिस आएंगी जो कि टेंजेंट टू द कर्व है। इसी तरह अगले इंस्टेंट पे जब ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो आपकी टेंजेंशियल एक्सिस ये हो जाएंगी, अगले इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ आएगा तो टेंजेंशियल एक्सिस ये होती चली जाएंगी। सो हर इंस्टेंट पे आपकी टेंजेंशियल एक्सिस और उसके रेलेवेंट नॉर्मल एक्सिस किस तरह होती है, नॉर्मल एक्सिस बीइंग डिफाइंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल एक्सिस। तो एक तरह से आपकी ये दोनों एक्सिस जो है वो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही होंगी। टेंजेंशियल एक्सिस भी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही होगी, नॉर्मल एक्सिस भी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही होगी। तो आप जो एनालिसिस करते हैं वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए वैलिड होता है जिसके लिए भी आप एनालिसिस जो है वो कर रहे हैं। Is it clear, Tariq? ओके सर, थैंक यू सो मच। Okay, so I hope कि velocity हर एक को clear हो जाएगी. Now, when we were discussing the XYZ coordinate system, how do we define acceleration in that particular case? कोई एक स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट करके बता दे कि acceleration हमने कैसे डिफाइन की थी? Anyone volunteer? How we have defined acceleration? The rate of change of velocity? Two times derivative of rate of change of displacement or derivative of velocity. ओके, करेक्ट। हमने किया क्या था कि अगर मैं इस केस की बात करूं तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आया है विच इज v u t, वेयर v रिप्रेजेंट्स s डॉट विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड ut रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन को हम इससे पहले तक डिफाइन करते रहे हैं। द एक्सेलरेशन वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो d by dt v वेक्टर। अब हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, सो d by dt vt। इस वेक्टर में दो चीजें आ रही हैं, वन इज v which represents the magnitude of velocity, the other one is ut which represents the direction। क्या ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है जिसको हमने v से रिप्रेजेंट किया है जो कि s डॉट के बराबर है, क्या ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है? इफ s is defined to you as a function of time, it means कि आपके पास s डॉट जो है वो भी as a function of time के तौर पे आएगा। so s डॉट would also be a function of time, it means कि ये चेंज हो रहा होगा with respect to time। what about this unit vector? क्या इसमें कोई चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ut? सर सिर्फ डायरेक्शन क्या आ रही है? बिल्कुल ठीक है, बिकॉज बाय द डेफिनेशन ऑफ अ यूनिट वेक्टर इट्स मैग्नीट्यूड विद रिमेन्स यूनिटी। कि अगर एक पार्टिकल यहाँ मौजूद है या एक पार्टिकल यहाँ मौजूद है तो यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड वाइज यूनिटी रहेगा, लेकिन हर इंस्टेंट पे चूंकि टी एक्सिस चेंज हो रही है तो इस यूनिट वेक्टर में डायरेक्शनल चेंज आ रही होगी। इट मींस के जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस v वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास ये दो चीजें हैं जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हैं। v भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ut भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो what rule should you apply for differentiating this velocity vector? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे। वो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि लेट अस सपोज के मेरे पास d by dt है। प्रोडक्ट रूल ऑलरेडी हमने पिछली एक एग्जांपल में डिस्कस भी किया था। सो आई हैव टू वेरिएबल्स a and b, बोथ ऑफ देम आर
changing with respect to time, and I need to differentiate this. So this is going to be equal to a को एक दफा कांस्टेंट रखेंगे, b का डेरिवेटिव आ जाएगा, दूसरी दफा हम b को कांस्टेंट रखेंगे और a का डेरिवेटिव आ जाएगा. तो एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे इस वेलोसिटी वेक्टर पे. पहले हम v को कांस्टेंट रखेंगे, यूनिट वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके बाद यूनिट वेक्टर को कांस्टेंट रखेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन वेक्टर. तो थोड़ा सा इसको और से देखें. जब हमने एक्सेलरेशन वेक्टर की बात की, so a वेक्टर इज गोइंग टू बी इक्वल टू द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, सो d by dt v. और जिस तरह अभी बात हुई थी कि उसमें चूंकि दो चीजें हैं, वन इज दैट v which is changing with respect to time, and the second one is so one is this v which is changing with respect to time, and the second thing is unit vector ut which is changing with respect to time. So आपने जब इसको डिफरेंशिएट करना है, पहले आपने यूनिट वेक्टर को कांस्टेंट रखा, v को डिफरेंशिएट किया तो आपके पास v डॉट आ जाएगा. सेकंड आपने v को कांस्टेंट रखा, यूनिट वेक्टर को डिफरेंशिएट किया तो आपके पास ut डॉट आ जाएगा. सो ओवरऑल द एक्सेलरेशन वेक्टर इज गोइंग टू बी इक्वल टू v डॉट ut प्लस v ut डॉट. ये डिफरेंशिएशन हर एक के समझ आ गई है या किसी को इस डिफरेंशिएशन के हवाले से कोई क्वेश्चन? उसके बाद फिर हम कहानी को आगे चलाते हैं. सो एवरीवन ऑफ यू अंडरस्टैंड कि हमने ये डिफरेंशिएशन किया क्या है, किस तरह किया है. हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है क्योंकि v हमारे पास डिफाइन था दैट वेलोसिटी वेक्टर वाज इक्वल टू v ut. तो ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर डिफाइन था. इसमें हमने एक दफा v को डिफरेंशिएट किया, ut को कांस्टेंट रखा, दूसरी दफा v को कांस्टेंट रखा और ut को डिफरेंशिएट किया. अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, ये जो ut डॉट है, व्हाट डज this ut dot represents? This ut dot represents the derivative of a unit vector. तो क्या ये derivative of a unit vector भी एक unit vector ही होगा या कुछ और होगा? Yes sir, unit vector ही होगा. Unit vector ही होगा. Are you sure? Yes sir. देखिए ut dot किसको represent कर रहा है? It represents the change that has occurred in this unit vector in time delta t approaches to 0. वो small change जो यूनिट वेक्टर में अकर हुई है इन टाइम डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0. जरा नीचे वाली फिगर को देखें. मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक इंस्टेंट पे जो कि इंस्टेंट टी है उस पे ये पार्टिकल इस पोजीशन पे मौजूद है जिसमें इसका यूनिट वेक्टर डिफाइन हुआ है with this ut. So आपके पास एक इंस्टेंट पे ये पार्टिकल यहाँ मौजूद है. At the next instant, very next instant, when delta t approaches to 0, this particle has moved to this new location in which the new unit vector is defined as ut dash. तो ये आपके पास दो यूनिट वेक्टर आ गए. One is this unit vector ut, the other one is this unit vector ut dash. तो ये आपके पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं, unit vector ut and ut dash. This vector basically represents dut, which is the change that has occurred वेक्टर इन टाइम डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, जिसमें ये एंगल डेल्टा थीटा या डी थीटा के तौर पे सबस्टेंड हो रहे हैं. तो आपके पास एक तरह से ये जो यूटी डैश है, ये यूटी डॉट है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं कि यूनिट वेक्टर में डायरेक्शनल कितनी चेंज अगर हुई है इन टाइम डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा, ये डी यू टी जो है ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा, ये वो स्मॉल चेंज है, डायरेक्शनल चेंज जो इस यूनिट वेक्टर में अकर हो रही है जब ये यूटी से यूटी डैश चेंज हुआ है. सो डायरेक्शन चूंकि सिर्फ इस यूनिट वेक्टर का चेंज हुआ है तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कितनी एक डायरेक्शनल चेंज जो है वो आई है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इस यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक हम इस यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव नहीं फाइंड करेंगे हमारे पास एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा. सो डू यू हैव एनी आइडिया कि हम ये यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं? एनीवन स्टूडेंट? ओके, शायद मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा भी हो, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा तो देयर इज एन अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ यूनिट वेक्टर. अभी मैं आपको इस ut डॉट का डेरिवेटिव थोड़ा सा समझाता हूँ कि किस तरह लेते हैं. उसके बाद ये समझाना आपको इसलिए जरूरी है कि आगे यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जब जब हमें कहीं भी किसी भी यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव चाहिए होगा. वो आगे जो r थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा आएगा जिसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कह रहे हैं, उसमें भी 12 दफा ये यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा. तो एक ही दफा आप अच्छी तरह समझ लें कि इस यूनिट वेक्टर का हम डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं. ऑल्दो इट इज एन अप्रोक्सीमेट मेथड, but generally this method is followed whenever we are going to find the derivative of any unit vector. थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के डेरिवेटिव को समझने के लिए हम कहते हैं कि in order to determine the time derivative of this unit vector ut, please note that as the particle moves along this small arc ds, जो कि आपको शो की गई है in time interval delta t, ut preserves its magnitude of unity. चूंकि वो यूनिट वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आएगी. However, its direction changes and the new unit vector would be ut dash.
जो मैग्नीट्यूड वाइज तो उतना ही होगा जितना यूनिट वेक्टर यूटी है, यानी मैग्नीट्यूड वाइज क्योंकि यूनिट वेक्टर है ये दोनों यूटी और यूटी डैश ये सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन वाइज इसमें चेंज आ चुकी है। वो डायरेक्शन चेंज किस तरह हम इवेल्युएट करते हैं, थोड़ा सा इसको गौर से देखें। फ्रॉम द फिगर, अगर ये वही फिगर है जो कि मैंने पिछली स्लाइड पे आपको दिखाई थी कि ये ओरिजिनल हमारी टी एक्सिस है जो कि हमने डिफाइन की हैं, और इस टी एक्सिस के हिसाब से हमारा ये यूनिट वेक्टर जो है वो डिफाइन हो रहा था। ये हमारा ओरिजिनल एन एक्सिस है। So this was our original unit vector ut. This was the new unit vector ut dash, which the particle has traveled when the particle has traveled to this new location, जिसको हमने p dash से represent किया। Again ये exaggerate करके बनाया गया, otherwise आपका जो अगला इंस्टेंट है वो बिल्कुल उस इंस्टेंट के करीब होगा। मसलन अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो ये इंस्टेंट और अगला इंस्टेंट बिल्कुल यहाँ होगा when delta t approaches to 0, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा हमने exaggerate करके जो है उस फिगर को बना दिए। So one unit vector was ut, the other unit vector was ut dash. So this vector which is dut, it represents the small change which has occurred in this unit vector when this particle has traveled from p to p dash. So from the figure, ut is equal to ut dash is equal to ut plus dut. यानी हमने वेक्टर एडिशन की है कि ut vector plus dut vector should be equal to ut dash. Okay, now when we talk about this vector which is dut, चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को हम डिफाइन किस तरह करते हैं, उसके जिस तरह अभी हमने वेलोसिटी के लिए लिखा था, इसकी दो चीजें होती हैं वेक्टर की। dut वेक्टर का एक अदद मैग्नीट्यूड होगा और एक अदद डायरेक्शन होगा जब ये वेक्टर जो है वो कंप्लीट होगा। सो ये dut वेक्टर को बेसिकली हमने इवेल्युएट करना है कि ये बिकॉज dut रिप्रेजेंट्स कि यूनिट वेक्टर में कितनी डायरेक्शनल चेंज आ रही है, तो यही हम इवेल्युएट करना चाह रहे हैं बाय डेरिवेटिव। सो dut which is the change that has occurred in unit vector ut, डायरेक्शनल चेंज, वो वेक्टर उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड के लिए अगर हम इस अप्रोक्सीमेट राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करें, सो कंसीडरिंग दिस अप्रोक्सीमेट राइट एंगल ट्राइंगल, साइन ऑफ दिस एंगल विच इज डी थीटा, साइन क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो साइन ऑफ डी थीटा शुड बी इक्वल टू दिस लेंथ जो कि हमने डीयूट से रिप्रेजेंट की है, डिवाइड बाय दिस लेंथ जो कि यूटी डैश के बराबर है, और यूटी डैश की मैग्नीट्यूड हमें पता है विच इज इक्वल टू 1। सो एक तरह से DUT जो है वो UT डैश जो कि 1 के बराबर है इनटू साइन ऑफ D थीटा के बराबर आ जाएगा। और आपने मुख्तलिफ थ्योरम्स में पढ़ा है कि whenever we have smaller values of theta then sin of theta is approximately equal to theta। तो आप करते क्या है कि DUT का मैग्नीट्यूड 1 into D थीटा हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस DUT। तो मैग्नीट्यूड की जगह मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ से D थीटा। जहां तक ताल्लुक इसके डायरेक्शन का है, तो सिंस इट इज एन अप्रोक्सीमेट राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं DUT का डायरेक्शन देखूं तो ये डायरेक्शन इसका ये बनता है विच इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ एन एक्सिस जिसको हमने यूनिट वेक्टर UN के साथ डिफाइन किया था। तो इस डायरेक्शन के लिए मैं UN को इस्तेमाल कर सकता हूं। सो ओवरऑल मेरे पास जो वेक्टर बनेगा DUT is equal to D theta which represents its magnitude and UN which represents its direction। so ये मेरे पास ओवरऑल DUT वेक्टर जो है वो बन जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ अगर किसी को कोई डाउट है। हमने किया क्या कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डायरेक्शनल चेंज दैट हैज अकर्ड इन यूनिट वेक्टर UT, हमने कहा कि ये DUT जो वेक्टर है इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड के लिए हमने कहा कि वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस अप्रोक्सीमेट राइट एंगल ट्राइंगल, साइन ऑफ D थीटा शुड बी इक्वल टू दिस लेंथ व्हिच इज DUT डिवाइड बाय दिस लेंथ व्हिच इज UT डैश, एंड UT डैश वी नो दैट इट इज इक्वल टू 1। सो ओवरऑल DUT हमारे पास बनेगा UT डैश व्हिच इज 1 इनटू साइन ऑफ D थीटा। फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ डी थीटा, चूंकि हम कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस चेंज जो आ रहा है तो उसमें हम एक इंस्टेंट और अगले इंस्टेंट की बात करें टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। सो हमारे पास साइन ऑफ डी थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी थीटा। सो ओवरऑल मेरे पास जो DUT बनेगा वो D थीटा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन के लिए मैंने कहा सिंस इट इज एन अप्रोक्सीमेट राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये वाला जो डायरेक्शन है इट वुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू द n एक्सिस डायरेक्शन जिसको हम यूनिट वेक्टर UN के साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल DUT मेरे पास जो बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू D थीटा व्हिच रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड इनटू UN जो कि उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा होगा। या अगर मैं चाहूं तो इन दोनों साइड्स को डिवाइडेड बाय DT करूं तो मेरे पास ये लेफ्ट साइड पे UT डॉट बन जाएगा और राइट साइड पे थीटा डॉट इनटू UN हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर UT डॉट। तो जब हम यूनिट वेक्टर UT डॉट की बात करेंगे तो यूनिट वेक्टर UT डॉट इज बेसिकली इक्वल टू थीटा डॉट इनटू UN। क्लियर है यहां तक? या किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस यूनिट वेक्टर डेरिवेटिव?
सर ये एंगल हम थीटा किस तरह मालूम करें? कौन सा एंगल थीटा? जो यूटी वाले में फॉर्मूला में है। देखिए अभी हमने कहा था कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं। इसमें हम कह रहे हैं साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ विच इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय दिस लेंथ विच इज हाइपोटेन्यूज। अब ये एंगल आता किस तरह है, ये भी थोड़ी सी आगे कहानी चलने दें, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा। लेकिन राइट नाउ आपके पास जो यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव है यूटी डॉट, इट इज इक्वल टू थीटा डॉट इनटू यूएन। जी कोई और क्वेश्चन जो आप पूछना चाहिए? एंगल अब किस तरह फाइंड करेंगे वो तो डिपेंड कर रहे हैं ना, हमें एक्चुअल प्रॉब्लम में डाटा गिवन होगा कि ये एंगल कितना सबटेंड कर रहे हैं, वो तो एक्चुअल प्रॉब्लम की बात है। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ यूनिट वेक्टर के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। ओके क्लियर है यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव? इसको एक दफा दोबारा घर जाके इस डेरिवेशन को देख लीजिएगा। ऑल्दो जिस तरह मैंने कहा कि इन द एंड आपको सिर्फ वो फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करने होंगे, लेकिन एटलीस्ट यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव फाइंड करना हर एक को आना चाहिए, बिकॉज द सेम प्रोसीजर इज गोइंग टू बी अप्लाइड whenever we are finding the derivative of a unit vector throughout this course। बेशक वो एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम है या आर थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम है या आगे कोई और ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें आपको यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है, तो हम एग्जैक्टली 100% यही सिमिलर प्रोसीजर जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे उस केस में। ओके सो आप अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएं, हमने कहा था कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर है इट इज v डॉट यूटी प्लस वी यूटी डॉट, और अभी हमने देखा है कि यूटी डॉट हमारे पास आ गया थीटा डॉट यूएन। तो अगर मैं चाहूं तो एक्सेलरेशन वेक्टर को लिख सकता हूं ए वेक्टर इक्वल टू v डॉट यूटी प्लस v थीटा डॉट इनटू यूएन। ऐसे ही है, एक्सेलरेशन वेक्टर मेरे पास आ जाएगा v डॉट यूटी जो कि पहली टर्म है प्लस v थीटा डॉट यूएन, ये मेरे पास कंप्लीट एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई एक इसमें जवाब दे दे। नो सर। ओके सो अब हम थोड़ी सी कहानी को मजीद आगे बढ़ाते हैं। हमें यहां से नजर आ रहा है कि ऑलरेडी हमारे पास एक इक्वेशन होती है या एक रिलेशनशिप होता है जिससे हम आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। वो क्या रिलेशनशिप है? एस इक्वल टू आर थीटा। याद है ये रिलेशनशिप? मैथ्स में पढ़ा था आपने, एस इक्वल टू आर थीटा। यस सर। यस सर। अच्छा इसमें आर क्या होता था? रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था। यहाँ चूंकि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को रॉ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं इस आर को रिप्लेस कर लूं रॉ से, तो ये बन जाएगा एस इक्वल टू रॉ थीटा। अब दोनों साइड्स को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा दिस वुड बिकम एस डॉट इक्वल टू रॉ तो कांस्टेंट है वो इसी तरह रहेगा, रॉ थीटा डॉट बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स आपके पास जो थीटा डॉट आएगा दैट वुड बी इक्वल टू एस डॉट ओवर रॉ। ठीक है, ये समझ आ गया रेको? यस सर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखें और अब हम कहानी को मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा कि s इक्वल टू आर थीटा या s इक्वल टू रॉ थीटा के बराबर होता है, उसकी वजह से हमारे पास थीटा डॉट जो है वो s डॉट ओवर रॉ के बराबर आ जाएगा। लेकिन ऑलरेडी हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि हमारे पास s डॉट क्या है, s डॉट इज बेसिकली इक्वल टू v, सो वी कैन राइट इट एज थीटा डॉट इज इक्वल टू v ओवर रॉ। अब हमारे पास जो कंप्लीट एक्सेलरेशन वेक्टर बनेगा दैट इज इक्वल टू v डॉट यूटी प्लस वी यूटी डॉट, और अभी हमने बात की थी यूटी डॉट जो है वो थीटा डॉट यूएन के बराबर होता है और थीटा डॉट वी ओवर रॉ के बराबर है, सो दिस वुड बिकम वी स्क्वायर ओवर रॉ। सो जब जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं द ओवरऑल एक्सेलरेशन वेक्टर इज गोइंग टू बी ऑफ दिस फॉर्म विच इज ए टी यू टी प्लस ए एन यू एन। एक्सेलरेशन वेक्टर आपके पास ए टी यू टी प्लस ए एन यू एन के बराबर आएगा, जिसमें ए टी जो है वो v डॉट के बराबर होगा और a n आपके पास v स्क्वायर ओवर रॉ के बराबर होगा। ut और un वो वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स जो टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सिस को डिफाइन कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है दैट एक्सेलरेशन इज बेसिकली द वेक्टर सम ऑफ इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स। तो जब जब हम कहते हैं कि आप किसी भी एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सेलरेशन वेक्टर लिखें तो इट इज बेसिकली द सम ऑफ normal component of acceleration and tangential component of acceleration या at vector plus an vector। अब ये दोनों वेक्टर्स हैं क्या? इससे पहले अगर आपको याद हो आप डिफाइन कर रहे होते थे जब हमने एक्सेलरेशन की बात की थी, बिल्कुल पहली स्लाइड अगर हम सेकंड लेक्चर की या पहले लेक्चर की बात करें तो आप में से काफी लोगों ने कहा था कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है
वो टुवर्ड्स द सेंटर होते हैं। और तो मैंने आपसे, अगर याद हो, मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम बाद में इसको तफसील के साथ देखेंगे। बेसिकली वो जो एक्सेलरेशन थी जिसको हमने टुवर्ड्स द सेंटर कहा था, वो सिर्फ एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट था जो कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन था, जिसको इससे पहले आप सेंट्रीपिटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के तौर पे जो है वो देख रहे थे। तो आपके पास जो टोटल एक्सेलरेशन है, दैट इज गोइंग टू बी द वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ the normal component of acceleration. The tangential component of acceleration would have a magnitude of v dot and its direction is represented by unit vector ut. The normal or centripetal component of acceleration would have a magnitude of v square over rho and its direction is designated by the unit vector un. जो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सिस या टी एक्सिस की तरफ आता है और आपकी वेलोसिटी भी टी एक्सिस के अलोंग है। तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, अगर तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में इंक्रीज आ रही है तो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट भी एग्जैक्टली वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही आएगा। हाउएवर अगर आपकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में डिक्रीज आ रही है तो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। होगा वो टी एक्सिस के अलोंग ही, लेकिन बेसिकली आपका ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की चेंज को रिप्रेजेंट करे। सो इफ द मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग, द टेंजेंशियल कंपोनेंट वुड बी अलोंग द पॉजिटिव टी एक्सिस यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन में आएगा। हाउएवर अगर ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में डिक्रीज आ रही है यानी पार्टिकल एक तरह से स्लो डाउन हो रहा है, तो फिर आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन होगा वो टी एक्सिस के अलोंग ही। जहां तक ताल्लुक नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का है, ये हमेशा आपका जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इसको हम यूएन के साथ जो है वो इसके डायरेक्शन को डेजिग्नेट करते हैं। तो ये जो आपका नॉर्मल कंपोनेंट है, एक तरह से वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है जो आप फिजिक्स में पढ़ते चले आए हैं, जिसको हम कहते हैं दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन टोटल एक्सेलरेशन आपकी इन दोनों कंपोनेंट्स का वेक्टर सम होता है। सो AT वेक्टर प्लस AN वेक्टर would give you the total acceleration vector A. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, so moving on to the next. There are these are just the two special cases जो कि शो किए गए हैं। इनको हम सिर्फ एक दफा पढ़ लेते हैं और अदरवाइज इसका सिग्निफिकेंस ऐसा कोई नहीं है। If the particle moves along a straight line, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के along ट्रेवल कर रहा हो, तो फॉर स्ट्रेट लाइन आपके पास जो रॉ आता है या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इन्फिनिटी के बराबर है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बराबर है तो आपके पास 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर। इट मींस कि उस केस में आपका नॉर्मल कंपोनेंट जीरो हो जाता है और सारी के सारी आपकी जो एक्सेलरेशन है वो आपके टेंजेंशियल कंपोनेंट के तौर पे काउंट हो रही होती है, विच इज v डॉट ut। और इससे पहले आप स्ट्रेट लाइन मोशन में भी ये देख चुके हैं कि आपका एग्जैक्टली यही वेक्टर आ रहा होता था v डॉट ut, यानी वेलोसिटी को एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन वेक्टर आ रहा था। तो व्हेनेवर अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन आपके पास सिर्फ एक कंपोनेंट आता है, विच इज v डॉट ut। सेकंड स्पेशल केस क्या है कि इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, so if the speed is constant, what is going to be the value of v dot, which is the change in this speed? जीरो। सो v डॉट आपके पास जीरो का क्या मतलब है कि आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट में जो है वो जीरो हो जाएगा उस केस में, और आपके पास सारी की सारी एक्सेलरेशन जो आएगी वो आपके इस नॉर्मल कंपोनेंट की वजह से आएगी, which is v square over rho. So if a particle is moving in a curved path but the magnitude of speed is constant, then the whole acceleration is going to come from the normal component. The tangential component is zero in that case, and the total acceleration is going to be equal to the normal component of acceleration, which is v square over rho. So ये आपके पास दो कंपोनेंट्स आते हैं। इस फिगर में आपको वो दो कंपोनेंट्स शो भी किए गए हैं फिजिकली कि कहाँ, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल अगर इस कर्व के अलोंग ट्रेवल कर रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पे, मसलन इस इंस्टेंट पे आपका ये नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट है और इन दोनों का वेक्टर सम आपको ये एक्सेलरेशन मिल रही है। इसी तरह इस इंस्टेंट पे ये आपका नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया और ये टोटल एक्सेलरेशन है। इसी तरह इस इंस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका टेंजेंशियल और नॉर्मल हो गया और उसके हिसाब से ये आपकी एक्सेलरेशन हो जाएगी एंड सो ऑन। तो आपकी हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन जो है वो चेंज होती जाएगी, बट इट रिमेन्स कि वो इन दोनों कंपोनेंट्स का वेक्टर सम होगा हर इंस्टेंट पे। आप AT निकाल ले होंगे, AN निकाल ले होंगे एंड सो ऑन। सो आई होप दैट these components are clear to all of you. Yes. Okay. अच्छा, इस नॉर्मल कंपोनेंट के लिए जब जब आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो v स्क्वायर ओवर रॉ होता है, जिस तरह हमने पिछली स्लाइडों में भी देखा है। इसमें रॉ रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स this rho which is the radius of curvature, it is known to you। अब डायरेक्टली इसकी वैल्यू को उस इंस्टेंट पे जो है वो अप्लाई करके रॉ की वैल्यू जो है वो यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। however there would be certain cases in which this rho जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये आपके लिए हो सकता है गिवन ना हो, ये अननोन क्वांटिटी के तौर पे आपको पता हो। so if that rho
that is the radius of curvature, is not known to you, but you need to know the value of rho in order to find out the normal component, then you are going to use this particular formula for finding the radius of curvature. Again, ये formula mathematics से आया है, so we are not going to go into the detail of this formula. Generally 99% problems में radius of curvature हमें known होता है, लेकिन अगर किसी केस में radius of curvature हमें known नहीं है, rather हमें ये known है कि y as a function of x के तौर पे, for example y equal to x cube के तौर पे मुझे known है, तो मुझसे कहा जा रहा है कि radius of curvature find करें कि normal of component of acceleration में rho इस्तेमाल होता है, so rho की value find out करें, तो I'm going to use this particular formula for finding the radius of curvature. ये formula कैसे use करने हैं? For example, अगर मैं इसी x cube की बात करूं, तो आपके पास 1 plus dy by dx क्या होता है? इस केस में x cube के केस में dy by dx क्या हो जाएगा? So dy by dx is going to be square whole square raised to the power 3 by 2 divided by d square y over dx square. d square y क्या हो जाएगा? It is going to be 6x. So ये मेरे पास रॉ आ जाएगा. यहाँ मैं x की relevant value put करूंगा तो मुझे उसका relevant रॉ की value मिल जाएगी. So in majority of cases, majority of problems हमें रॉ known होता है, लेकिन अगर किसी वक्त हमें रॉ नहीं known किसी instant पे, तो we can use this formula to find out the raw for that particular instant. दूसरा, अगर आप इस फिगर में देखें तो आपको यहाँ वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस दिखाई गई हैं. अगर पार्टिकल यहाँ लोकेटेड है तो इस इंस्टेंट पे टी एक्सिस, एन एक्सिस और इस एंटी प्लेन के परपेंडिकुलर आपको वो बी एक्सिस या बायनॉर्मल एक्सिस जो है वो दिखाई गई है. अभी आपने देखा होगा हमने काइनेमेटिक्स डेवलप करते हुए इस बायनॉर्मल एक्सिस को कहीं इस्तेमाल नहीं किया. वजह क्या है कि हमारे पास काइनेमेटिक्स के लिए इस बायनॉर्मल एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ती. जनरली आपका वो प्लेनर वो होता है, एंटी प्लेन में ही सारी काइनेमेटिक्स डेवलप हो रही होती है. हाँ, जब हम काइनेटिक्स पे जाएंगे तो देन काइनेटिक्स में आपको इस बायनॉर्मल एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे होंगे. मे बी कुछ फोर्सेस एंटी प्लेन में एक्ट कर रही हैं और कुछ फोर्सेस आपकी जो है वो परपेंडिकुलर टू दैट एंटी प्लेन एक्ट कर रही होंगी, जहां आपको फिर इस बायनॉर्मल एक्सिस की जरूरत पड़ सकती है. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये थर्ड एक्सिस जो है उसकी हमें जरूरत नहीं है. यहाँ हम सारे के सारी काइनेमेटिक्स एंटी प्लेन में ही करेंगे. काइनेटिक्स के लिए हम फिर इस बायनॉर्मल एक्सिस को जो है वो कंसिडर कर रहे होंगे. Is it clear to all of you? अब किसी को कोई डाउट इस एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम से या इसकी काइनेमेटिक्स से, तो काइंडली जो है वो आप जो भी डाउट है उसको यहाँ आप पूछ सकते हैं. आपको मैंने अलाउ किया हुआ है कि आप चाहें तो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके. तो काइंडली जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो अपने आप को अनम्यूट करके एक एक करके जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्लियर है काइनेमेटिक्स इन टर्म्स ऑफ एंटी कोऑर्डिनेट सिस्टम? Yes, sir. ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ. चलें इसी फिगर पे वापस आते हैं. ये कर्विलिनियर मोशन एंटी कोऑर्डिनेट की स्लाइड हर एक को नजर आ रही है. इसमें आपके पास सपोज मैं बात करता हूँ इस इंस्टेंट की जिसमें ये पार्टिकल जो है वो इस जगह पे मौजूद है. सो द पार्टिकल इज लोकेटेड एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट. ये आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है. इस केस में वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? कोई आइडिया दे सकते हैं? जिस डायरेक्शन में Same direction. एटी है. ओके, सो मैं कहता हूँ ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया. इसी तरह जब मैं ये वाला इंस्टेंट कंसीडर करता हूँ, आपका 80 यहाँ है, वेलोसिटी भी अगेन आपकी 80 के डायरेक्शन या टेंजेंशियल टू दैट एक्सिस ही आती है. सो हर इंस्टेंट पे हो क्या रहा है कि आपके 80 और v जो है वो सेम एक्सिस के अलोंग डिफाइन हुए हैं. यानी ये भी हो सकता है कि आपका एक्सेलरेशन इस तरफ आ जाए लेकिन होगी वो एक्सिस सेम. यानी हमेशा v और 80 दे आर गोइंग टू बी इन द सेम डायरेक्शन और along the same axis. सेम डायरेक्शन की मैं बात नहीं करता. v और 80 would act along the same axis which is the tangential axis. So आपके स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या हो रहा होता था? अगर हम बिल्कुल पहले टॉपिक पे जाएं, स्ट्रेट लाइन मोशन में v और a सेम एक्सिस के along आ रहे होते थे, ऐसा ही है? यस सर. सो वो तमाम फॉर्मूले, वो तमाम इक्वेशंस जो कि आपने स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए डिराइव की थी, बेशक वो 3 जनरल काइनेमेटिक इक्वेशन हुई या वो 3 कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस हुई, वो तमाम के तमाम इक्वेशंस कैन बी अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल व्हिच इज ट्रेवलिंग अलोंग अ कर्व पाथ. आप टी एक्सिस के अलोंग वो तमाम के तमाम इक्वेशंस को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. बेशक वो 3 जनरल काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं या वो 3 कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस हैं. ऑल दोस इक्वेशंस कैन बी अप्लाइड ऑन दिस पार्टिकल अलोंग द टी एक्सिस बिकॉज the acceleration and velocity are, both of them are, the tangential component of acceleration and velocity are acting along the same t axis. तो आप जितनी भी स्ट्रेट लाइन की काइनेमेटिक्स आपने इस टॉपिक के या इस चैप्टर के पहले टॉपिक में पढ़ी थी, they can be applied on this particle along the t axis only. Is this point clear to all of you?